I think we can start now. Rochak, Sir. okay, आप unmute कर सकते हो ना? Okay, Yes. so we'll start. Good evening, all of you. I welcome all of you in this sixth webinar. So, as all of you are aware by now, that we are holding these weekly webinars on Saturdays with a view that at this point of time, when all of us are coming back to our offices after this lockdown, so we are aware of the recent changes which have happened. Plus, we discuss some of the critical issues which are important in terms of if there is a confusion in the law or there are confusion in the procedures. और उसी संदर्भ में जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज ऑन जीएसटी एंड स्पेसिफिकली ऑन रिफंड्स. All of you are aware that refund is that exercise जहाँ पे rather than paying any money to the government, हम सरकार से हमारा पैसा जो हमने टैक्स का जमा करा रखा है, चाहे वो ज़्यादा जमा हुआ है या हम एक्सपोर्ट करते हैं या हमारा ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर है जहाँ हमारे इनपुट्स पे रेट ज़्यादा है या किसी और रीज़न से अगर हम वो रिफंड लेने के हकदार है, तो देन वी फॉलो दैट प्रोसीजर एंड वी आस्क फॉर दैट मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट. ये भी बात हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि सरकार से पैसा वापस मांगना इट इज़ नॉट दैट इजी बिकॉज उनका मेन काम टैक्स कलेक्ट करना है. तो जो टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है अगर हम उनसे पैसा तो इट इज़ नॉट दैट एंड दैट इज वाई रिफंड के बारे में देखेंगे फिर रियलाइज कि इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज. मतलब जस्ट बिकॉज हम एक्सपोर्ट करते हैं इसलिए हमें रिफंड मिलना चाहिए, ये बात बट व्हेन वी गो डीप डाउन वी रियलाइज कि नहीं है. रिटर्न्स का सही फाइल होना भी जरूरी है, उसके साथ साथ रिटर्न एप्लीकेशन का सही फाइल होना जरूरी है, हमारे डॉक्यूमेंट सही होने जरूरी है और हमारी बात ऑफिसर को समझ में आ जाए वो चीज़ भी उतनी ही जरूरी है. प्लस जीएसटी लॉ में रिफंड्स के अलग अलग तरीके के प्रकार हैं. सो देयर आर टाइप्स ऑफ रिफंड्स. सो हमको किस कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी चाहिए, किस तरीके से एप्लीकेशन लगानी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट साथ में लगने चाहिए, प्लस क्या इश्यूज हैं. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये समझते हैं कि हमें रिफंड नहीं मिल सकता क्योंकि कानून में आप जिस तरीके का बिजनेस करते हैं उसके बारे में रिफंड की कोई बातचीत नहीं है. पर आपके पास क्रेडिट का अक्यूमुलेशन काफी ज्यादा है और अगर क्रेडिट अक्यूमुलेशन ज्यादा है तो उस क्रेडिट को किस तरीके से लिक्विडेट किया जा सकता है, इवन इज दैट पॉसिबल. सो वील डिस्कस अ लिटिल बिट ऑन इट. दो आई वुड लाइक टू से कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज जनरल इन नेचर. सो इफ देयर इज एनीथिंग स्पेसिफिक व्हिच यू फेस, please always come back to us and we can have a discussion over it. So with this background today, रोचक जैन, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो हिम. जो भी सब लोग हमारे थ्रू रिफंड्स फाइल करते हैं बिकॉज रोचक assistant manager of the firm, he takes care of all the refund procedures and filing and coordination with the department. So he'll take us through and guide us through various refund provisions which are there under GST, what are the issues and what can be done at any point of time where I think that I have to pitch in, so I'll come. Otherwise, Rochak will take the session. Over to you, Rochak. And before I do that, please don't put yourself if unless you have to ask. You want to ask. Also, all of you have to pin to Anshul Jain. आप Anshul Jain in your so आप presentation देख पाएंगे. Please don't click on present now because if you'll do that, then आप screen नहीं देख पाएंगे और हमें unfortunately we have to just take you out of this room and again then we have to admit you. So with this, I hand over to Rocha. Thank you, yes, sir. Good evening, everyone. Today we are going to discuss about the topic GST refund and related issues, and I'm going to cover the broad areas which are what is refund. Next slide, Rajat, Anshul, please. Next. So we are going to cover what is GST refund, types of refund, concept of relevant date for filing refund, procedures for filing refund,
calculation for filing refund, amendment in definition of zero rated turnover, that is in Rule 89(4)(c) of the CGST Rules 2017, reconciliation of Annexure B and GSTR 2A, and latest updates in online filing of refund claims. Thereafter we will take question and answer session. So next slide, Anshul Bhaiya. Next. What is GST refund? GST refund is any amount returned by the government that was paid by the registered taxpayer either in excess or inadvertently in other head, or paid by the registered taxpayer to the supplier ITC availed in respect of which is accumulated in the electronic credit ledger or unutilized due to export of goods and services under LUT, and rate of tax on inputs is more than the rate of tax on output supplies. Like अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो हमारी आईटीसी एक्यूमुलेट होगी हमारे लेजर में, जो हम बिना रिफंड फाइल किए नहीं ले पाएंगे। और अगर हमारी इनपुट्स जो है वो हायर रेट की है और आउटपुट जो है कम रेट की है, तो हम उसका रिफंड हमारे आईटीसी लेजर में वो एक्यूमुलेट होती रहेगी। इसके लिए हमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का देखना पड़ेगा कि वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो रहा है, तो हमें रिफंड फाइल करने पड़ेगा। उसके लिए प्रोसीजर्स कैलकुलेशन हम आगे समझेंगे। तो टैक्स पेयर जो है वो 2 साल के अंदर रिफंड ले सकता है रेलेवेंट पीरियड से। तो रेलेवेंट पीरियड हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड रजत भैया, अंशुल भैया। कंसेप्ट ऑफ रेलेवेंट डेट फॉर क्लेमिंग रिफंड: goods exported through air or sea, so date on which such ship or aircraft leaves India; goods carried by land or vehicle when the goods cross the land frontier of the country; goods sent through post, date of dispatch of goods from the post office; supply includes services and when the same is complete before the receipt of payment of receipt date; services performed after the receipt of an advance tax invoice date; refund claim is made for excess input tax credit left unutilized end of the financial year for which such refund claim is being made; goods supplied for deemed export, that is supplied to SEZ or 100% EOU, return filing date related to such deemed exports was filed; a refund arises due to an order passed in favor of the appellant, date of such order; tax paid following a provisional assessment and refund now arises, date at which such tax was adjusted; person claiming refund is not the supplier, date at which the goods was received by such person; for all of the cases date of payment of tax. सो जब भी हम किसी रिफंड की बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वो रेलेवेंट पीरियड रेलेवेंट डेट में फॉल करता है या नहीं करता है। अगर उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है तो उस चीज का हम रिफंड नहीं ले सकते until unless there are some other provisions related to this. Next slide, Anshul Bhaiya. So we are going to discuss broad areas and types of refunds, that are refund of unutilized ITC account on account of export of goods and services without payment of tax; excess payment of tax; refund of accumulated ITC on account of inverted duty structure; excess balance available in electronic cash ledger; and export of services with payment of tax. These are the 5 broad areas which are in regular for filing refunds. Next slide, Anshul Bhaiya. क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है जिसमें एक्यूमुलेशन और अनयूटिलाइज आईटीसी हो सकती है? तो या तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अंडर एलयूटी, तो अंडर एलयूटी कर रहे हैं तो हमारा टैक्स तो कहीं पे हो नहीं रहा है, तो वो हमारे लेजर में खड़ी रहेगी। उसके लिए तो हमें रिफंड लगाना पड़ेगा, तो वो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। इसकी एक मेन कंडीशन ये है कि हमें एलयूटी में एक्सपोर्ट करना है, दैट इज जीरो रेटेड सप्लाई के अंदर। फिर अपनी रेट जो है इन्वर्ट की वो ज्यादा है और आउटपुट कुछ कम है, तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो रहा है, तो इस केस में भी हमारा एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा होता है, उस केस में हम रिफंड फाइल कर सकते हैं। तो ये सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से हमारी आईटीसी एक्यूमुलेट होती है या अनयूटिलाइज होती है, जिसकी वजह से हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अंशुल भैया। प्रोसीजर्स क्या होते हैं जीएसटी रिफंड में? कॉमन और स्पेसिफिक। कुछ चीजें ऐसी होती है जो कॉमन होती है, जो हर तरह के रिफंड में लगाई जाती है, कुछ चीजें होती है जो स्पेसिफिक होती है। सो मैं तीन रिफंड जो है पहले डिस्कस करूंगा। एक तो एक्सपोर्ट्स वाला रिफंड, एक इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड, और एक एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस विद पेमेंट ऑफ टैक्स। सो कॉमन थिंग्स क्या है? एनेक्सर बी। एनेक्सर बी एक स्टेटमेंट होता है जो अपने इनपुट्स का होता है, वो हमें रिफंड के साथ देना पड़ता है, और उसका रिकंसिलिएशन 2A के साथ होता है जो मैंडेटरी है। और एक रिकंसिलिएशन होता है जीएसटीआर 1 का और जीएसटीआर 3B का अपनी बुक्स के साथ। फिर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, सर्कुलर जो है 125/44/2019 विच इज ए मास्टर सर्कुलर फॉर रिफंड्स, एंड 135/05/2020। सो फिर होता है ऑनलाइन फाइलिंग। ऑनलाइन फाइलिंग रिफंड जो है जीएसटी में विदाउट ऑनलाइन फाइलिंग के हम नहीं कर पाएंगे।
Online filing is mandatory for taking refunds and process thereon. So these are four main documents which are required in most of the refund cases. फिर होते हैं स्पेसिफिक रिफंड्स। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं अनयूटिलाइज आईटीसी के केस में। अगर हम एक्सपोर्ट्स का अंडर एलयूटी में रिफंड ले रहे हैं तो हमें एक स्टेटमेंट 03 देना होता है जो अपनी एक्सपोर्ट की इनवॉइस वाइज डिटेल्स होती है, जिसमें हमें टैक्सेबल वैल्यू, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट एंड पोर्ट कोड ये सब देना होता है। और मेन चीज होती है इसमें ईजीएम डिटेल्स। अगर किसी इनवॉइस का ईजीएम हमारे शिपर ने फाइल नहीं किया है तो हम उस इनवॉइस का रिफंड नहीं ले पाएंगे। एक और चीज होती है जो हमें इसमें कंपेयर करनी होती है, वो होती है हमारे शिपिंग बिल की जो वैल्यू होती है आईएनआर वैल्यू, और जो हमारी टैक्स इनवॉइस की आईएनआर वैल्यू होती है। उसमें कई बार डिफरेंस आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा टैक्स इनवॉइस पहले बन जाता है और हमारा शिपमेंट बाद में होता है। तो कई बार क्या होता है, एक्सचेंज रेट का डिफरेंस आ जाता है। उसकी वजह से हमें उस वैल्यू को लोअर मतलब कंपेयर करना पड़ता है, उन दोनों का लोअर पे हमें रिफंड मिलता है। फिर आता है हमारा केस इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में एक हमारा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट जाता है, वो स्टेटमेंट 1 है। वो होता है हमारे आउटवर्ड सप्लाईज का और इनवर्ड सप्लाईज का। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में हमें सिर्फ इनपुट्स का रिफंड मिलता है, इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो हमें बनाना होता है एनेक्सर बी, जो हमें 3B से रिकंसाइल कराना होता है और 2A से रिकंसाइल कराना होता है। फिर उसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमारे उस एनेक्सर बी में इनपुट कौन कौन सी होती है। तो उस इनपुट्स को हम इस स्टेटमेंट 1A में शो करते हैं। लेफ्ट साइड पे इनपुट्स आती है, राइट साइड पे हमारी आउटपुट सप्लाई जाती है, जो ये दिखाती है कि हमारा जो हो रहा है वो इन्वर्टेड हो रहा है। हमारी इनपुट जो है हायर रेट पे है और आउटपुट जो है लोअर रेट पे है। तो स्टेटमेंट 1A केस में जाता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के। फिर आता है एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स। इस केस में हमें ऑनलाइन तो कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है, बट इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक स्टेटमेंट 2 देना पड़ता है जिसमें हमारी आउटपुट सप्लाई की डिटेल आती है, जिसमें हमने टैक्स पे किया सर्विसेज के केस में। तो ये दीज आर द मेन डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आईटीसी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एक्सपोर्ट अगर अंडर एलयूटी हम कर रहे हैं तो उसके केस में हमें रिफंड लेने के लिए रिफंड फॉर्मूला एक गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, उसके बेस पे हम रिफंड फाइल करते हैं। तो वो फॉर्मूला है रिफंड अमाउंट इज इक्वल्स टू टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स क्या होता है, जो हमने एक्सपोर्ट किया है अंडर एलयूटी। इस केस में अभी एक अमेंडमेंट आया है जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहले क्या होता था, ओल्ड प्रोविजन में हमें जो हमने एक्सपोर्ट किया अंडर एलयूटी वो पूरा लेना होता था। नेट आईटीसी में हमें कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता है, वो अलाउ नहीं है रिफंड के केस में। तो हमें सबसे पहले हमारी एम आई ऑडिबल Am I audible? Yes, Rochak. Yes, Rochak, you are. Please continue. Okay, sir. So, नेट आईटीसी के केस में हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है हमने 3B में कितना आईटीसी अवेल किया है, फिर उसे हमें रिकंसाइल करना पड़ता है। जो मैंने पहले बताया एनेक्सर बी हमें रिकंसाइल कराने के लिए होता है। उसमें से एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं अंडर एलयूटी तो उसके केस में हमें कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता। अगर कैपिटल गुड्स के अगेंस्ट में मैंने कोई आईटीसी अवेल किया है तो गवर्नमेंट मुझे उसका रिफंड नहीं देगी। अगर इनएडवर्टेंटली मैंने कोई रिफंड ले लिया है तो मुझे विद इंटरेस्ट उसको पे करना पड़ेगा, जो कि गलत है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई करेंगे किस किस चीज का हमें अलाउ नहीं है, उसको हम पहले एक्सक्लूड कर लेंगे, फिर उसके बाद हम रिफंड लगाएंगे। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम इंक्लूड करके रिफंड फाइल कर देते हैं तो अननेसेसरी टाइम खराब होता है, डॉक्यूमेंट्स खराब होते हैं, वर्किंग खराब होती है, कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, जो दिस इज नॉट द राइट वे टू गेट रिफंड। फिर आता है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर होता है पूरे जीएसटीआर 1 में रेलेवेंट पीरियड में आपने कितना टर्नओवर रिपोर्ट किया उसका सम टोटल, लाइक जीरो रेटेड टर्नओवर प्लस डोमेस्टिक टर्नओवर, आइदर इट इज B2B और B2CS, क्रेडिट डेबिट नोट्स, एडवांस रिसीव्ड और एडजस्टेड, और एक्सक्लूडिंग एग्जाम सप्लाईज। एग्जाम सप्लाईज को हम एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। अमेंडमेंट इन डेफिनेशन ऑफ जीरो रेटेड टर्नओवर 89(4)C CGST रूल्स 2017। ये अमेंडमेंट आया है थ्रू नोटिफिकेशन 16/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 23 मार्च 2020। इस केस में ऐसा है, रिफंड के फॉर्मूले में होता है टर्नओवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर वो सर्विसेज की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो बात करता है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स।
तो इन सब का इस अमेंडमेंट में ऐसा है कि हम तीन चीज कंपेयर करनी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा या तो हम जिस रेट पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो, या फिर उस जो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है बाय द सेम सप्लायर उसका 1.5 गुना, या फिर किसी और सप्लायर जो हमारे जैसे गुड्स मतलब मार्केट में बेच रहा है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, उन तीनों का लोअर वैल्यू जो होगा वो हमें टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में कंसीडर करना पड़ेगा। सो इन रिफंड फॉर्मूला हमें न्यूमेरेटर में तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा, बट डिनोमिनेटर में हमें पूरी आउटवर्ड सप्लाई कंसीडर करनी पड़ेगी, जिससे रिफंड का अमाउंट हो जाएगा 0। तो अभी एक तरह से देखा जाए तो एक्सपोर्टर के लिए ये चीज नुकसान में है, और इस पे अभी काफी सारे कंट्रोवर्शियल चल रही है, तो वो हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। एग्जाम्पल देखते हैं हम जीरो रेटेड टर्नओवर जो अभी चेंज आया है उसके अगेंस्ट में। डेफिनेशन बोलती है ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से एक्चुअल वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, न्यू प्रोविजन के हिसाब से बोलती है लोअर ऑफ एक्चुअल वैल्यू ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स 1.5 टाइम ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बाय द सेम सप्लायर और सिमिलरली प्लेस सप्लायर। या तो सेम सप्लायर का डोमेस्टिक सप्लायर का 1.5 गुना हो, या फिर सिमिलरली प्लेस सप्लायर का देखो, तो इन तीनों का हमें लोअर लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट टर्नओवर है मेरा 9 लाख, आईटीसी है मेरी 4 लाख, डोमेस्टिक सेल्स है मेरी 5 लाख, टोटल एडजस्टेड टोटल टर्नओवर हुआ मेरा एक्सपोर्ट टर्नओवर प्लस डोमेस्टिक टर्नओवर दैट इज 14 लाख। सो अगर न्यू प्रोविजन के हिसाब से मैं देखता हूं तो मेरा होता है फॉर्मूले के हिसाब से 5 दैट इज डोमेस्टिक सेल्स उसका 1.5 गुना इंटू 1.5 मल्टीप्लाई बाय मेरा नेट आईटीसी 4 लाख डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, जिसमें मुझे एक्सपोर्ट टर्नओवर और मेरी जो डोमेस्टिक सेल्स है वो इंक्लूड करनी है। तो न्यूमिनेटर में तो मैंने कम कर दिया, बट डिनोमिनेटर में मेरे को उसको पूरा रखना है। तो आप देखोगे न्यू प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन के हिसाब से स्लाइड में रिफंड मेरा कम बन रहा है, जो कि ये एक्सपोर्टर के लिए बहुत गलत है, और ये सही नहीं है। रिफंड हमें इस हिसाब से लेना है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। इस अमेंडमेंट से क्या क्या इंपैक्ट आया है? एक तो इन्विटेशन टू लिटिगेशन, रिडक्शन इन रिफंड अमाउंट एंड अननेसेसरी हर्डल्स इन वर्किंग एंड फाइलिंग ऑफ रिफंड। पहले अगर आप देखोगे तो हम जब रिफंड करते हैं तो वो स्मूथली फाइल हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी वर्किंग होती है, हमें टर्नओवर में ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है उसको देखना है और जो रिक्वायरमेंट्स है वो देखनी है। बट हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक सप्लाई किस रेट पे जा रही है, उसका 1.5 गुना कितना हो रहा है, और सेम सिमिलर सप्लायर क्या देख रहा है, उन सबका हमें लोअर लेना है। तो ये एक एक्सपोर्टर के लिए बहुत गलत चीज है। यस सर, मुदित सर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? हेलो मुदित सर, यस सर। रोचक, you may continue. ओके सर, नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। लिक्विडेशन ऑफ एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वर्टेड ड्यूटी। अगर मैं देखता हूं, अगर मैं रेगुलर मेरे जो इनपुट्स होते हैं और आउटपुट्स होते हैं उसको देख के चलता हूं, तो क्या मेरा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में अगर मान लो मेरी इनपुट्स हो रही है ज्यादा रेट पे, आउटपुट हो रही है कम रेट पे, और अगर मैं नॉर्मल मेरी जो आईटीसी होती है उसको मैं लेता रहता हूं, तो क्या मुझे रिफंड बनता है? वो हम देखेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू। फर्स्ट मंथ में मेरा आउटपुट टैक्स था 200, इनपुट आईटीसी था मेरा 190, इनपुट सर्विस आईटीसी था मेरा 90, और कैपिटल गुड्स का आईटीसी था 50। तो टोटल आईटीसी हुआ मेरा 330। अभी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के इसमें फॉर्मूला बोलता है आईटीसी ऑफ इनपुट्स माइनस आउटपुट्स, उसका मुझे रिफंड मिलता है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता है। तो बैलेंस आईटीसी बचता है मेरा 130। फिर सेकंड मंथ में देखता हूँ, आउटपुट है मेरा 220, इनपुट आईटीसी है मेरा 210, इनपुट सर्विस आईटीसी है 80, कैपिटल गुड्स आईटीसी है 30। तो टोटल आईटीसी होता है 320। तो बैलेंस आईटीसी प्लस 320 माइनस 220 दैट इज टोटल आईटीसी माइनस आउटपुट टैक्स दैट इज 220 इज इक्वल्स टू 230। फिर थर्ड मंथ में देखता हूँ तो आउटपुट टैक्स है मेरा 350, इनपुट आईटीसी है मेरा 310, इनपुट ऑफ सर्विस आईटीसी है मेरा 120, कैपिटल गुड्स आईटीसी है मेरा 20 एंड टोटल आईटीसी मेरा 450। तो 450 माइनस 350 दैट इज टोटल आईटीसी माइनस आउटपुट टैक्स दैट इज 100 प्लस 230 मेरा बैलेंस आईटीसी 300। अगर अब मैं देखता हूँ मंथ ऑन मंथ मेरे फॉर्मूले के हिसाब से मेरा रिफंड बनता है, तो वो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मेरा इनपुट का आईटीसी कम था और मेरा रिफंड आउटपुट टैक्स ज्यादा था। तो 190 माइनस 200 निल, 210 माइनस 220 निल, 310 माइनस 350 निल। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। अगर मैं चाहूं मेरा आईटीसी पैटर्न चेंज करूं तो क्या रिफंड पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। फर्स्ट मंथ में सेम केस था, 200 आउटपुट टैक्स था, इनपुट आईटीसी 190 था, तो मेरा बैलेंस आईटीसी बच रहा था 130।
सेकंड मंथ में मेरा आउटपुट टैक्स था 220। सेकंड मंथ में मैं क्या करा, मैंने इनपुट का आईटीसी नहीं लिया, मैंने सिर्फ इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का आईटीसी लिया। तो जो मेरा बैलेंस था वो मेरा बैलेंस बचा 20। ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में मेरा रिफंड नहीं बना, सेकंड मंथ में मेरा रिफंड नहीं बना, थर्ड मंथ में मेरा आउटपुट टैक्स था 350 और थर्ड मंथ में मैंने वो आईटीसी लिया जो मैंने सेकंड मंथ के इनपुट में नहीं लिया था। तो मेरा आईटीसी थर्ड मंथ में हुआ 520। इनपुट सर्विस था मेरा 120, कैपिटल गुड्स था मेरा 20, टोटल आईटीसी हुआ मेरा 660। तो 660 माइनस 350 इज इक्वल टू 660, दैट इज बैलेंस आईटीसी मेरा बचता है 20 प्लस 660 माइनस 350 मेरा आउटपुट टैक्स। तो मेरा इनपुट आईटीसी बचता है 520। अगर मैं देखता हूं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो आईटीसी ऑफ इनपुट दैट इज 520 एंड आउटपुट टैक्स माइनस 350, तो मेरा 170 का रिफंड बनता है। अगर हम थोड़ा सा पैटर्न हमारा आईटीसी का चेंज करते हैं और हम इसके लिए मतलब वर्किंग करते हैं कि हम किस तरह से हमारे आईटीसी को रिफंड ले सकते हैं जो हम एक्यूमुलेट हो रही है हमारे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से, तो हम उस चीज को रिफंड मिल सकता है। अगर हम नॉर्मली अगर आईटीसी जो आ रही है हम उसको लेते जा रहे हैं तो हमारा रिफंड कभी नहीं बनेगा। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कैलकुलेशन। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में भी गवर्नमेंट ने एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिस फॉर्मूले के बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं। वो फॉर्मूला है टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मल्टीप्लाई बाय नेट आईटीसी डिवाइड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर माइनस टैक्स पेएबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब है मींस द वैल्यू ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। लाइक सपोज मैं जनवरी का रिफंड लगा रहा हूँ, जनवरी के मंथ में मेरी आउटवर्ड सप्लाईज थी 5% या 12% की रेट पे, मेरा इनपुट हो रहा था 5, 12, 18, 28 पे। तो मेरा जो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स होगा वो जो मेरी आउटवर्ड सप्लाईज है वो, फिर उस पर जो मैंने टैक्स पे किया आईसीएस में वो मेरा टैक्स पेबल इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। नेट आईटीसी के केस में जो मैंने आईटीसी अवेल किया जीएसटीआर 3B में, तो सबसे पहले तो मैं एनेक्सर वी बनाऊंगा, उसमें देखूंगा मेरा आईटीसी वो 3B से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि सिर्फ इनपुट्स कौन कौन सी है जिसका मुझे रिफंड मिल सकता है, तो वो नेट आईटीसी होगा क्योंकि मुझे इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलेगा। फिर होता है एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, means the turnover in a state or union territory as defined under clause 112 of section 2 of CGST Act excluding the value of exempt supplies। यहाँ पर भी वही बात कह रहा है जो अनयूटिलाइज आईटीसी के केस में कह रहा था कि exempt supplies को एक्सक्लूड करो, उसके अलावा जो टर्नओवर बचता है वो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाईज होगी ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स use of an input A and input B to a manufacturer output Y, where ITC A attracting 5% GST, input A B attracting 18% GST, and output Y attracting 12% GST. Further assume that applicant supplies the output Y having value of 3000, input A having value of 500, and input B having value of 2000. Next slide निशुल भैया। यहाँ पे वर्किंग कैसे होगी? टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हुआ मेरा 3000। सिंस एप्लीकेंट हैज नो आउटवर्ड सप्लाईज, यहाँ पर कोई एग्जाम्प्ट सप्लाईज और नील रेटेड सप्लाईज नहीं थी जिसको मुझे इंक्लूड करना पड़े एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में, और वैसे भी वो नहीं होता है। तो फिर मैं देखता हूँ मेरा आईटीसी कितना हुआ। जो मेरा आईटीसी बना वो है इनपुट ए और इनपुट बी पे 500 इंटू 5, क्योंकि वहां पे ए इनपुट जो है वो 5% अट्रैक्ट कर रहा था, इनपुट बी 18% अट्रैक्ट कर रहा था, तो 2000 इंटू 18 दैट इज 360। नेट आईटीसी हुआ मेरा इनपुट अवेलेबल ऑन इनपुट ए, आईटीसी अवेलेबल ऑन इनपुट बी, दैट इज 360 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 385। तो टैक्स पेड ऑन इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या हुआ? 3000 मल्टीप्लाई बाय 12%, क्योंकि मेरा जो आउटपुट वाई था वो 12% अट्रैक्ट कर रहा था, दैट इज 360। अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से इस चीज को फिट करते हैं तो वो होता है टर्नओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज 3000 multiply by net ITC, that is only inputs on A and input B, that is 360 plus 25 is equals to 385, divide by 3000, that is my adjusted total turnover since I have no other supplies, minus 360, that is tax paid on such inverted rated supply of goods and services। तो मेरा रिफंड बनता है 25 रुपीज का। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। अब आते हैं हम एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स पे। सिचुएशंस क्या क्या हो सकती है जहां पे मेरा एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स हो सकता है?
या तो ऐसा हो कि मेरी कोई सप्लाई थी, जैसे लाइक सपोज मैं कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूँ 18% पे, गलती से मैंने उस पे 28% पे टैक्स पे कर दिया। ये चीज मुझे 5 महीने बाद जाके पता लग रही है कि मैंने 28% पे उस पर टैक्स पे कर दिया। तो क्या मुझे मुझे उसका रिफंड मिलेगा? हाँ, मुझे उसका रिफंड मिल सकता है। क्यों? क्योंकि एचएसएन के हिसाब से अगर देखो तो प्रोफेशनल सर्विसेज पे 18% लगता है। तो मेरी एलिजिबिलिटी तो यहाँ पे सही हो गई कि मुझे 18% पे टैक्स पे करना था, बट मैंने कर दिया 28% पे, तो मैं उसका रिफंड गवर्नमेंट से ले सकता हूँ और गवर्नमेंट इस रिफंड को अलाउ करता है इन फॉर्म RFD 01। फिर एक सेकंड केस क्या हो सकता है, लेट सपोज मेरे पेन पे 4 बिजनेस रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड हैं, मेरे को बी रजिस्ट्रेशन पे टैक्स पे करना था और मैंने टैक्स पे कर दिया ए रजिस्ट्रेशन पे, जो मेरे किसी काम का नहीं है, जो आगे मेरी 3B किसी 3B में वो एडजस्ट नहीं होने वाला है। तो क्या मुझे उसका रिफंड मिलेगा? हाँ, मुझे उसका रिफंड मिल सकता है। मैं एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स के हेड में जाके उसका रिफंड अप्लाई कर सकता हूँ। बट थिंग इज, मेरे पास प्रॉपर प्रूफ होने चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, प्रॉपर रिकंसिलिएशन होना चाहिए। थर्ड केस क्या हो सकता है, लेट सपोज मेरा 10 लाख का लाइबिलिटी था मार्च मंथ में, मैंने 10 लाख की जगह 1 करोड़ रुपए टैक्स पे कर दिया और वो 3B सेट ऑफ हो गया। तो क्या मुझे उसका रिफंड मिलेगा? हाँ, मिलेगा। अगर मान लो या तो एक केस हो सकता है कि हो सकता है नेक्स्ट मंथ मेरी कोई ज्यादा आउटपुट हो तो मैं उसको 3B से एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं है, आगे मेरी कोई सप्लाई नहीं होने वाली है, तो मैं उस चीज का रिफंड ले सकता हूँ, गवर्नमेंट को ये प्रूफ दे सकता हूँ कि मेरी आगे कोई सप्लाई नहीं होगी और मुझे इसका रिफंड दिया जाए। तो वी हैव टू सबमिट द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकंसिलेशन एंड ऑल। या फिर मैंने कोई टैक्स अंडर प्रोटेस्ट पे किया हो, लेट सपोज कोई सप्लाई थी जिसपे मुझे कॉन्ट्रडिक्शन था कि मुझे टैक्स पे करना है या नहीं करना है, बट फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मैंने उस पर टैक्स पे कर दिया और एक लेटर सबमिट किया डिपार्टमेंट को कि मैं ये टैक्स अंडर प्रोटेस्ट सबमिट कर रहा हूँ, जब भी इस पर क्लैरिफिकेशन आएगा मुझे रिफंड मिलेगा, मैं उस चीज के लिए रिफंड अप्लाई करूंगा। तो इस केस में भी हम लोग एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स का रिफंड ले सकते हैं। ये सिचुएशंस हो सकती है जिसकी वजह से हमें एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स का रिफंड मिल सकता है। जैसा यस सर ने कहा कि गवर्नमेंट से पैसा निकालना बहुत मुश्किल काम है, सो वी हैव टू सबमिट ऑल द डिटेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स जो प्रॉपर हों, जो करेक्ट हों और जिसके लिए हमारे पास प्रूफ्स अवेलेबल हों, उसके बाद ही हम रिफंड के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन इन ऑल। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। प्रोसीजर एंड वर्किंग ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स, क्या प्रोसीजर हो सकता है, किस तरह से हम वर्किंग कर सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले हमें रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा GSTR 1 एंड GSTR 3B का। फिर हमें GSTR 1 और GSTR 3B को बुक्स से कंपेयर कराना पड़ेगा, क्या वो बुक्स के साथ मैच कर रही है। फिर हमें एक एनेक्चर बनाना पड़ेगा, लेट सपोज मैंने 10 इनवॉइस ऐसे थे जिस पर 18% टैक्स पे होना था और मैंने 28% पे कर दिया, तो मुझे उस 10 इनवॉइसेस को फाइंड करना पड़ेगा, उसके हिसाब से एक एनेक्चर प्रिपेयर करना पड़ेगा इनवॉइस वाइज। फिर उसके बाद मुझे एलिजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी, क्या मुझे उसका रिफंड मिल सकता है, क्या HSN के हिसाब से मेरी वो रेट सही थी या गलत थी, जो जो भी चीजें थी वो हमें चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, लाइक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, GSTR 1 GSTR 3B का रिकंसिलिएशन। अगर मान लो मेरा अमाउंट 2 लाख से ऊपर है तो मुझे एक CA सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा 89(2)M में, दैट द बर्डन हैज नॉट बीन पास टू एनी अदर पर्सन। या फिर मुझे 89(2)A में एक डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा कि जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ वो ट्रू और करेक्ट है और नथिंग हैज बीन कंसील्ड देयर फ्रॉम। और फिर उसके बाद मुझे ऑनलाइन फाइल करने पड़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे सर्कुलर 125 के हिसाब से, और फिर कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है ऐसी जिसमें मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का रिफंड मिल सकता है? एक सिचुएशन होती है कि मैंने 4 लाख पे करने थे, 4 लाख की जगह मैंने 8 लाख इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पे कर दिया थ्रू चालान, बट मुझे पता है अब मेरी आगे कोई सप्लाई नहीं होगी, तो वो 4 लाख मेरे किसी काम का नहीं है। उस 4 लाख को मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़े रहने जैसे अच्छा है कि मैं उस चीज का रिफंड लूं। गवर्नमेंट मुझे इस चीज का रिफंड अलाउ करती है, मैं ऑनलाइन जाके इस चीज का रिफंड ले सकता हूँ। बस ये है, मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रूव करने पड़ेंगे कि ये सही है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम थी, गलती से मैंने टैक्स पे किया है। एक केस हो सकता है TDS TCS क्रेडिट एक्सेप्टेड। मान लो मैं किसी गवर्नमेंट को सप्लाई करता हूँ सर्विसेज, वो मेरा 2% TDS काटती है GST में, तो TDS एक्यूमुलेट होते 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 1 करोड़ रुपए हो गया। अब उस क्रेडिट का मैं क्या करूंगा? उस क्रेडिट को मैं एक्सेप्ट करूंगा, वो मेरे कैश लेजर में आएगी, या तो मेरी आउटवर्ड सप्लाई जितनी हो कि मैं उस कैश लेजर को उससे सेट ऑफ कर सकूं मेरे रिटर्न्स के थ्रू, या फिर मुझे पता है कि मेरी आगे कोई आउटवर्ड सप्लाई इतनी नहीं होने वाली है, तो मैं उस चीज का रिफंड ले सकता हूँ। बस मुझे ये है, जो मेरी TDS क्रेडिट है और जो मेरा टैक्स कटा है, TDS कटा है, उसको मुझे मैच करा के देना पड़ेगा। 2 लाख से ऊपर का रिफंड है तो मुझे 89(2)M में रिफंड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और ये सब डॉक्यूमेंट्स जो जो साथ में सपोर्टिंग है वो सर्कुलर 125 के हिसाब से वो मुझे सबमिट करने पड़ेंगे।
थर्ड केस ऐसा हो सकता है, थर्ड केस हो सकता है मैंने टैक्स डिपॉजिट किया, मुझे पे करना था सीजीएसटी में, बट मैंने सेस में पे कर दिया गलती से। तो पहले क्या था, फॉर्म PMT-09 एप्लीकेबल नहीं था, मतलब अलाउ नहीं कर रहा था पोर्टल, और अब स्टार्ट नहीं हुआ था। तो पहले तो मैं क्या कर सकता था, या तो मैं रिफंड ले सकता था उस चीज का, क्योंकि सेस का मान लो मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मैं सेस के बैलेंस का क्या करूंगा, तो मुझे उसका रिफंड मिल सकता था। मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे, जो गलत चालान मैंने पे किया, जो सही चालान मैंने पे किया, वो सब डॉक्यूमेंट्स मुझे अपलोड करने होते थे। अभी 21 अप्रैल 2020 को एक नया PMT-09 स्टार्ट हुआ है पोर्टल पे, जिसके बेसिस पे मैं मेरे जो ट्रांसफर, जो लेजर्स पे बैलेंस पड़ा है, उसको इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता हूँ। सो अब जो थर्ड कंडीशन है वो इस रिफंड के केस में एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि अननेसेसरी डॉक्यूमेंट एंड कोऑर्डिनेशन करने का जरूरत नहीं है, जब हम इजीली एक फॉर्म भर के उस हमारी लेजर की बैलेंस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। प्रोसीजर क्या क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बैलेंस का रिफंड लेने के लिए। सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि किस हेड का हमें रिफंड लेना है, उसको फिर रिकंसाइल करना होगा कि जो मैंने टैक्स पे किया वो सही है, कैश लेजर में जो डेबिट हुआ वो सही है। उसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे सर्कुलर के हिसाब से, फिर ऑनलाइन फाइल करके कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा डिपार्टमेंट। तो कोऑर्डिनेशन करना इट्स नॉट सो इजी फॉर एनीवन। सो अगर हम कोई रिफंड फाइल कर रहे हैं तो हमारे पास उस चीज के लिए हर तरह का प्रूफ होना चाहिए, हर तरह से हमारे पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सामने वाला ऑफिसर कुछ भी हमसे पूछ सकता है कि आपने ये क्यों किया, ये कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ। तो इस चीज के लिए भी हमें कोऑर्डिनेशन का होना चाहिए कि हम किस चीज को उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो वो सब चीजें हमें प्रूफ के थ्रू हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। रिकंसिलिएशन ऑफ अनेक्सर बी एंड GSTR 2A, इसका पर्पस क्या है? गवर्नमेंट का तो पर्पस सीधा सा है कि एसएससी के बिजनेस पे ध्यान रख सके, या फिर कोई गलत रिफंड फाइल कर रहा है वो फ्रॉड रिफंड फाइल होने से बच सके, या फिर जो फेक इनवॉइसिंग एंड ऑल होती है वो बच सके। एसएससी सिर्फ अपने को देखता है। एसएससी का बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या होता है, मेरी आईटीसी मैच हो जाएगी मेरी ऑडिट के लिए या फिर रिफंड के पर्पस के लिए, मेरा इजी रिकंसिलेशन हो जाएगा मेरे एंड ऑफ द ईयर पे, इजी सैंक्शनिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशंस। अगर मान लो मंथ ऑन मंथ में आईटीसी मैच कराता हुआ चलता हूँ, लेट सपोज मेरा 100% एक्सपोर्टर हूँ और मैं रिफंड फाइल कर रहा हूँ, तो क्या मैं बिना आईटीसी मैच करा रिफंड ले सकता हूँ? आपको क्या लगता है ऑफिसर आपको रिफंड दे देगा? नहीं, कभी वो रिफंड नहीं देगा। अगर आपकी आईटीसी कभी मैच नहीं होगी तो वो आपको रिफंड नहीं देने वाला है। इनफैक्ट वो आपको शोकोज देगा, तो वो आपका लिटिगेशन बढ़ जाएगा, बहुत सारे कंप्लाइंसेस बढ़ जाएगी। इससे अच्छा है कि हम मंथ ऑन मंथ हमारी आईटीसी को मैच करें, उसको GSTR 2 से रिकंसाइल कराएं, हमारी रिटर्न से मैच करें, उसके बाद हम रिफंड फाइल करें। दैट इज द राइट वे टू फाइल रिफंड। नेक्स्ट रजत भैया। एनेक्सर बी फॉर्मेट। एनेक्सर बी एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है जो मास्टर सर्कुलर दैट इज 125/44/2019 में दिया है, जो अमेंड हुआ है अभी 135 सर्कुलर में। उसमें हमें अब एक एडिशनल डिटेल देना होता है HSN का। तो एनेक्सर बी क्या होता है? एनेक्सर बी एक स्टेटमेंट होता है हमारे इनपुट रजिस्टर का, जो हमें रिफंड के साथ सबमिट करना होता है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में एप्लीकेबल होता है। उसमें हमें डिटेल्स देनी होती है, GST ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर, इनवॉइस नंबर, डेट, वैल्यू, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, HSN, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स, अमाउंट ऑफ एलिजिबल ITC रिफ्लेक्टेड इन 2A, यस और नो। इन सब का मुझे रिकंसिलेशन बनाना पड़ता है, इनमें डिटेल्स डालनी पड़ती है। सबसे पहले तो मुझे इसको रिकंसाइल कराना होता है 3B से। लाइक सपोज मैंने 3B में 40 लाख की आईटीसी ली, तो उस 40 लाख की आईटीसी का बेस क्या है? सामने वाले ऑफिसर को ये नहीं पता कि आपने आईटीसी में क्या लिया है, क्योंकि GSTR 3 और 2 अभी नहीं जा रहा है। तो उनको तो सिर्फ ये पता है कि आपने टोटल आईटीसी लिया है 40 लाख का GSTR 3B में। उस चीज को प्रूव करने के लिए वो क्या मांगेंगे आपसे? आपका इनपुट रजिस्टर मांगेंगे। और एक ये एनेक्सर भी जो है वो एक तरह का इनपुट रजिस्टर ही है, जो हम गवर्नमेंट को देते हैं जब हम रिफंड फाइल करते हैं। वो इस चीज के लिए होता है जो हमें रिकंसाइल कराता है हमारे रिटर्न से। अगर ऑफिसर सेटिस्फाई होता है एनेक्सर भी, तो इसका मतलब वो सेटिस्फाइड है कि आपने जो रिटर्न में आईटीसी लिया है वो सही है और इसमें कुछ भी फेक नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। HSN वाइज डिटेल्स, HSN वाइज ITC डिटेल्स इन एनेक्सर बी एंड न्यू इंसर्शन। HSN डिटेल्स 1 अप्रैल 2020 के पहले नहीं जाता था। हमें सिर्फ एक एनेक्सर बी बनाना होता था और नॉर्मली एक GSTR 2A से कंपेयर कराना होता था कि सामने वाला इनवॉइस जो है वो 2A में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो उसके साथ हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते थे परचेज इनवॉइसेस के, जो GSTR 2A में नहीं आ रहे।
इस चीज से क्या हुआ, गवर्नमेंट को कभी फायदा नहीं हुआ। गवर्नमेंट एसएससी ने क्या करा, एसएससी ने तो ये करा कि मेरे 2A में 500 इनवॉइस नहीं आ रहे तो मैं 500 की कॉपी सबमिट कर दूंगा और मेरे को रिफंड मिल जाएगा। बट गवर्नमेंट का जो मोटिव था वो कभी पूरा नहीं हुआ। तो अभी गवर्नमेंट ने एक चीज डाला, गवर्नमेंट ने बोला कि आप एचएसएन वाइज डिटेल्स दो हमें इनवॉइस की, जिससे हमें पता लगेगा कि आप कहीं कैपिटल गुड्स पे तो मतलब रिफंड नहीं ले रहे हो, इनपुट सर्विस पे तो रिफंड नहीं ले रहे हो, जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो उस चीज के लिए एचएसएन स्टार्ट होता है चैप्टर 1 से 98 तक और 99 तक। तो एप्लीकेंट क्या करेगा, अब एप्लीकेंट को हर रिफंड एप्लीकेशन के साथ 1 अप्रैल 2020 के बाद एचएसएन का डिटेल्स देना पड़ेगा इनवॉइस वाइज, जिससे गवर्नमेंट को प्रूव हो कि हाँ ये जो रिफंड ले रहे हैं वो सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ये अपने लिए भी अच्छा है, एक तो हो कि अपन रिफंड ले बिना एचएसएन की डिटेल्स। मान लो मैंने 50 लाख की कैपिटल गुड्स की आईटीसी का रिफंड ले लिया, मुझे 2 साल बाद जाके पता लगा कि मुझे उसका रिफंड नहीं मिलना चाहिए था, तो 50 लाख का इंटरेस्ट एंड ऑल बहुत ज्यादा हो जाता है। ऑडिट की नजरों में हम लोग आ जाते हैं और वो डिपार्टमेंट जो है वो सर्च स्टार्ट कर देता है। तो इससे अच्छा है कि हम सब चीजें पहले रिकंसाइल करें, उसके बाद हमारा रिफंड लगाएं। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। इश्यूज फेस्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एनेक्सर पी। क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, या तो हमने कोई गलत आईटीसी ली है। लेट्स सपोज मैंने मार्च के महीने में एनेक्सर मेरी आईटीसी 3B में 10 लाख रुपए की आईटीसी थी जो गलती से ले ली, जो मुझे नहीं लेनी थी बट मैंने ले ली। एक तो ये हो सकता है। एक होता है सेपरेट इनवॉइस नंबर। मैंने तो इनवॉइस नंबर डाला 101, सामने वाले ने इनवॉइस डाला 101-2017-2018, तो ये मेरा कभी मैच नहीं होगा 2A से, अगर मैं 2A से मैच कराने जाऊंगा तो। एक होती है आरसीएम डिटेल्स, एक होती है डुप्लीकेट इनवॉइस। मान लो मैंने इनवॉइस नंबर 101 का रिफंड जो है मैं फैब में ले चुका हूँ, फिर मैं इस मंथ में उसको डाल के रिफंड ले रहा हूँ, तो वो गलत है। वो हमेशा डुप्लीकेसी होगी, और जिस टाइम वो पता लगेगा ऑडिट वालों को, जीएसटी रिफंड ऑडिट्स को, वो आपसे विद इंटरेस्ट उस चीज का रिफंड लेंगे। फिर होता है एक इनवॉइस होता है जो 2A रेलेवेंट पीरियड के 2A में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। लेट्स सपोज मई मंथ की कोई मेरी आईटीसी थी जो मैंने मार्च 2019 में जाके ली, तो क्या मुझे उसका रिफंड मिलेगा? यस, मुझे रिफंड मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस मई मंथ का इनवॉइस जो है वो मई मंथ के 2A में आ चुका है। तो 2A में तो आ चुका, वो रेलेवेंट पीरियड के 2A में कभी, वो मार्च मंथ के 2A में तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी मई में आ चुका है। तो इस चीज का मुझे रिफंड मिलेगा। तो ये चीजें मुझे सब देखने की होती है जब मैं एनेक्सर भी बनाता हूँ। एक होता है अवेलमेंट ऑफ ब्लॉक्ड आईटीसी। लेट्स सपोज मैंने फूड पे कोई आईटीसी था जो मेरे को लेना नहीं था, मैंने सीवी में ले लिया, अब मैं उसका क्या करूं? तो सबसे पहले तो क्या होता है, आपने जो भी गलत लिया, जो भी आपने अवेल, ब्लॉक्ड आईटीसी अवेल करी, गलत आईटीसी अवेल करी, उस सबको आप डालो अनेक्सर बी में। सबसे पहला काम होता है मुझे मैच कराना है मेरी 3B को। तो सबसे पहले तो मैं 3B से उस आईटीसी को मैच कराऊंगा। फिर मैं ये देखूंगा मेरे एचएसएन क्या क्या है, वो मैं डालूंगा। फिर मैं देखूंगा 2A में कौन कौन से इनवॉइस आ रहा है, उस पर यस नो करूंगा। ठीक है, फिर मैं ये देखूंगा कौन कौन से इनवॉइस है जो पहले मंथ के 2A में आ रहा है या बाद के मंथ में 2A में आ रहा है, मैं वो एंट्री डालूंगा। फिर मैं देखूंगा कि मेरी गलत आईटीसी कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले देखने वाली चीज ये है कि या तो मैंने आईटीसी उसको रिवर्स कर दिया अप्रैल मंथ में, या मैंने उसको कभी रिवर्स ही नहीं किया। अगर मैंने उसको ऑलरेडी रिवर्स कर दिया है तो मुझे उसके लिए एक सिंपल सा नोट लिखना है नीचे अनेक्सर बी के कि ये मैं ऑलरेडी रिवर्स कर चुका हूं, इसलिए मैं अनेक्सर बी में इस आईटीसी को लेस नहीं कर रहा हूं। अगर मैं वहां भी रिवर्स कर चुका हूं और मैं यहां भी लेस कर दूंगा तो मुझे असल में नुकसान है, मेरा रिफंड ऑलरेडी कम हो जाएगा। तो इससे अच्छा है हम उस चीज को देखें कि हमने उसको आगे रिवर्स किया या नहीं किया। अगर ब्लॉक्ड आईटीसी तो ब्लॉक्ड आईटीसी के केस में भी मैं यही करूंगा। ठीक है, फिर हमें देखना होता है कि इनपुट कौन सी, इनपुट सर्विस कौन सी, कैपिटल गुड्स कौन सी। तो अगर मैं एक्सपोर्ट का रिफंड ले रहा हूं तो मुझे सिर्फ कैपिटल गुड्स के आईटीसी को एक्सक्लूड करना है, जिससे मेरी जो नेट आईटीसी है वो निकल के आ जाए कि इस आईटीसी के बेस पे मुझे रिफंड लेना है। अगर मैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड ले रहा हूं तो मुझे इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स के आईटीसी को एक्सक्लूड करना है और सिर्फ ये देखना है कि मुझे इनपुट का रिफंड लेना है। तो ये इश्यूज फेस होते हैं जो सिर्फ एसएससी के पार्ट पे हो सकते हैं। अगर आप मुझे कहो कि मैं इस चीज को करने बैठूं तो मुझे कभी नहीं मिलेगा, सिंस एसएससी को उसकी बिजनेस की पूरी नॉलेज होती है, उसको पता हो उसने कब कहाँ पे कौन सी एंट्री पास करी, कब कहाँ पे कौन सी डिटेल्स मेंशन करी। सो अनेक्सर भी जो होता है वो होता है क्लाइंट के पार्ट पे। अब उसमें क्या डिसीजन लेना है, उसमें क्या आईटीसी हमें लेनी है नहीं लेनी है, वो हमारा काम होता है। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। रिकंसिलिएशन ऑफ अनेक्सर बी एंड जीएसटीआई 2A। दिस इज द सिंपल वे जिसके बेसिस पे हम ये निकाल सकते हैं कि हमारे 2A के बेसिस, रेलेवेंट पीरियड के 2A के बेसिस पे क्या आईटीसी होता है जो हमें रिफंड में लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने क्या आईटीसी अवेल करी जीएसटीआई 3B में। फिर हम लेस करेंगे जो रेलेवेंट पीरियड के 2A में इनवॉइसेस नहीं आ रहे उसको। फिर हम ऐड करेंगे जो
इनवॉइसेस अपीयर हो रहे हैं 2A में, बट मैंने उसको रिटर्न में नहीं लिया। फिर हम लेस करेंगे इनवॉइसेस अपीयरिंग इन प्रीवियस पीरियड 2A। कुछ ऐसे इनवॉइसेस होते हैं जो मेरे ऑलरेडी प्रीवियस पीरियड के 2A में आ चुके हैं, तो मैं उसको यहाँ पे लेस करूंगा। फिर मैं लेस करूंगा आरसीएम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आरसीएम ऐसे होते हैं जो अनरजिस्टर्ड डीलर से होते हैं, उसका उसका आरसीएम कभी भी 2A में नहीं आएगा, तो वो मैं उसको उसको मुझे यहाँ लेस करना है। तो इस सब कैलकुलेशन से निकल के आएगा आईटीसी एज पर 2A ऑफ द रेलेवेंट पीरियड। इस आईटीसी के बेसिस पे मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ और गवर्नमेंट मुझे इजीली उसका रिफंड देगा। अगर क्या होगा, मैं एनेक्सर बी और 2A, अगर आपकी कितनी भी लाइजनिंग हो डिपार्टमेंट में, अगर आप एनेक्सर बी और 2A को रिकंसाइल नहीं करा रहे हो तो गवर्नमेंट आपको कभी पैसा नहीं देगी। गवर्नमेंट बेस मानती है जीएसटीआर 2A को कि जीएसटीआर 2A सही है। वो ये नहीं देखती कि आपका कौन सा इनवॉइस पहले आया है बाद में आया है, वो सिर्फ ये देखती है 2A में इतना टोटल आ रहा है, एनेक्सर बी में इतना टोटल आ रहा है, ये मैच नहीं कर रहा तो एसएससी को शोकोज दे दो। इससे कुछ नहीं होता। यू हैव मतलब आपको हर चीज का प्रूफ होना चाहिए, आपके पास रिकंसिलेशन होना चाहिए। तो सबसे बेटर तरीका ये है, आप एनेक्सर बी बनाओ, 2A से रिकंसाइल कराओ, एक रिकंसिलेशन फॉर्मेट बनाओ, एक रिकंसिलेशन बनाओ प्रॉपर, और आप उस रिफंड एप्लीकेशन से उसको अपलोड करो। उससे क्या होगा, एसएससी को मतलब ऑफिसर को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या आपने गलत किया क्या सही किया। वो सबसे पहले देखेगा आपका रिकंसिलेशन। वो रिकंसिलेशन से अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो आपका जो रिफंड है वो विद इन 7 डेज प्रोसेस हो जाएगा। अगर वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अननेसेसरी वो आपको 50 बार डिपार्टमेंट बुलाएगा, आपसे बोलेगा आप ये वेरीफाई कराओ, आप ये वेरीफाई कराओ। उसके साथ में 50 चीजें निकल के आएगी जिससे वो बोलेगा कि आपका ये सही नहीं है, आपका वो सही है। तो बेटर भी हम कोई भी रिफंड फाइल कर रहे हैं तो हम सबसे पहले रूल्स को देखें, रूल्स के हिसाब से हम हमारी वर्किंग बनाएं और उसको हम प्रेजेंट करें, उसी के बाद हम रिफंड लगाएं तो हम सही हैं। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। Applicability of Rule 36(4) after 9/10/2019, 9 October 2019, a hurdle for 100% export. Rule 36(4) आया कि a taxpayer filing GSTR 3B can claim provisional input tax credit only to the extent of 10%. It was earlier 20% up to 31st December 2019, but it's now 10% of the eligible credit available in GSTR 2A. For example, मेरा ITC में 2A में ITC अवेलेबल था 110, उसमें से मेरा एलिजिबल आईटीसी था 100। 10% वो था जो मेरा ब्लॉक क्रेडिट था जिसका मुझे आईटीसी नहीं लेना था, बट वो 2A में आएगा क्योंकि सामने वाला सप्लायर जो है वो अपने जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करेगा। प्रोविजनल आईटीसी क्या होगा, प्रोविजनल आईटीसी होगा जो मेरा एलिजिबल आईटीसी है 2A का 100, उसका 10% दैट इज ₹10। तो मेरा टोटल आईटीसी जो मैं क्लेम कर सकता हूँ 3B में, लेट सपोज मेरा आईटीसी बन रहा है 100 और 2A के हिसाब से जो मेरा 10% एलिजिबल आईटीसी हो रहा है वो 10, तो मैं सिर्फ 110 उसको ले सकता हूँ। करंट कोविड सिचुएशन में इसके लिए एक रिलैक्सेशन दिया है गवर्नमेंट ने कि Feb 20 से लेकर अगस्त 20 तक जो भी आईटीसी है जो 2A में नहीं आ रहा है वो हम ले सकते हैं। सिर्फ हमें उसका रिकंसिलेशन जो है वो सितंबर 2020 के रिटर्न में रिकंसाइल करना है और उसके बेसिस में सितंबर 20 की रिटर्न जो है वो फाइल होगी। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। पॉइंट्स टू रिमेंबर आफ्टर एप्लीकेबिलिटी ऑफ 36(4). अगर आप 100% एक्सपोर्टर हैं तो जो सबसे ज्यादा चीज आपको करने की है वो है, आप अगर आपकी कोई आईटीसी है, लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरी कोई कंपनी है, मैंने रिटर्न फाइल करी, मेरी आउटवर्ड सप्लाई सब सही जा रही है, मैं आईटीसी बिल्कुल सही ले रहा हूं, लेकिन सामने वाले जो सप्लायर है मेरे बहुत छोटे छोटे वेंडर्स हैं, वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो मेरे 2A में मान लो 1000 इनवॉइसेस होनी चाहिए थे बट 500 इनवॉइसेस 2A में नहीं आ रहे हैं। तो 36(4) को अगर मैं देखता हूं तो मैं सिर्फ 500 इनवॉइसेस का 10% ले सकता हूं। तो मेरे लिए तो नुकसान है क्योंकि मैं 100% एक्सपोर्टर हूं, मेरे क्रेडिट लेजर में हमेशा वो आईटीसी पड़ी रहेगी, वो कभी काम नहीं आएगी। तो या तो मैं उसके लिए आईटीसी प्लानिंग करूं कि मैं 2 महीने तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा हूं या फिर 3rd मंथ में विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर रहा हूं, या फिर मैं ये कर सकता हूं कि मैं एक बंदे को लगाऊं जो मेरा कंटिन्यूसली फॉलोअप करे क्लाइंट्स के लिए। मतलब मैं वो अपने वेंडर्स को फोन करे और बोले कि सर आप रिटर्न फाइल करो जिससे वो 2A में आए और मैं उसका रिफंड ले सकता हूँ। या फिर आप ये करो कि आप मंथ वाइज मैचिंग करो और ये देखो कि कौन कौन से इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं, उनसे फॉलोअप स्टार्ट करो, उनको किस तरह से लेना है वो स्टार्ट करो, फिर एक प्लानिंग करो आईटीसी अवेलमेंट की। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अलोंग विद रिफंड एप्लीकेशन। सर्कुलर है 125/14/2019, ये मास्टर सर्कुलर रिफंड्स का, जितने भी सर्कुलर्स आज तक आए हैं 3 साल में उन सबका एक मास्टर सर्कुलर गवर्नमेंट ने निकाल दिया, वो है 125/2014-2019। उसके बाद एक अमेंडमेंट आया है कुछ, तो वो है उसके लिए सर्कुलर है 135। तो सर्कुलर 125 के हिसाब से जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं
ऑफिसर क्या करता है, ऑफिसर को कुछ नहीं आता, वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपने सर्कुलर के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और क्या आपने उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है ऑनलाइन। अगर वो ऑनलाइन अपलोडेड नहीं है तो वो आपको रिफंड नहीं देगा, वो एक डेफिशिएंसी मेमो दे देगा, तो उसमें सिर्फ इतना से लिखा कि आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। तो ये अपने लिए अननेसेसरी टाइम कंज्यूम होगा, अपनी आईटीसी जब तक ब्लॉक रहेगी, जब तक रिफंड सेंक्शन नहीं होगा। तो बेटर भी हम कोई भी अगर रिफंड लगा रहे हैं तो हम उस सर्कुलर को पढ़ें, उस सर्कुलर के हिसाब से जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है हम वो फाइल करें। लेट्स सपोज अगर हम एक्सपोर्ट का रिफंड लेते हैं अंडर अंडर एलयूटी वाला, तो जो डिक्लेरेशंस हैं ये सब ऑलरेडी मेरे RFD 01 में ऑलरेडी होती है। जब मैं ऑनलाइन फाइल करने जाता हूँ वहां मुझे सिर्फ टिक करना होता है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं ये मुझे मैनुअली अपलोड करने होते हैं। जीएसटी एट 2A ऑफ द रेलेवेंट पीरियड, स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइसेस अनेक्सर बी जिसकी मैं बहुत देर से बात कर रहा हूँ, self certified copies of entered in annexure B and whose details are not found in GSTI 2A of relevant period। तो मुझे annexure B और 2A को रिकंसाइल कराना है और कोर को कोई से इनवॉइसेस नहीं है, वो 2A में जो नहीं आ रहे हैं इनवॉइसेस, मुझे उसकी कॉपी अपलोड करनी होती है जिससे वो ऑफिसर चेक कर सके कि आपने जो आईटीसी लिया है वो सही है। फिर एक होता है BRC FIRC इन केस ऑफ शिपिंग बिल्स। अगर कोई नॉन ईडीआई पोर्ट्स होते हैं जहां से मेरी कुछ आइटम शिप हो रहा है और उसके केस में शिपिंग बिल नहीं है, तो मुझे उसके BIRC FIRC की कॉपी अपलोड करनी होती है। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। अंशुल भैया list of documents required to be submitted along with refund application. Refund of tax paid on export of service, refund of unutilized ITC on account of, am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. So, list of documents required to be submitted along with refund application. Refund of tax paid on export of service made with payment of tax. Yes, sir, audible. Okay. List of documents required to be submitted along with refund application. Refund of tax paid on export of service made with payment of tax. तो डिक्लेरेशंस जो है वो ऑलरेडी मेरे फॉर्म में अवेलेबल है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मुझे क्या क्या अपलोड करना है। अगर मैं कोई सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ विद पेमेंट ऑफ टैक्स, तो एक तो स्टेटमेंट 2 जाता है, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर जाते हैं BIRC FIRC सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कि हमें उसका पैसा मिल चुका है। एक जाती है 2A की कॉपी, एक जाता है एनेक्सर B जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और जो इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं 2A में उनकी कॉपी। फिर एक सेल्फ डिक्लेरेशन जाता है नॉन प्रोसिक्यूशन का अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 91 ऑफ द CGST फॉर अवेलिंग प्रोविजनल रिफंड। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। List of documents required to be submitted along with inverted duty structure refund. Copy of GST at 2A, Annexure B, self-certified copies which are not reflected in 2A. ये these are the common documents मैं जिसके लिए पहले डिस्कस कर चुका हूँ जो हमें रिफंड के साथ सबमिट करने होते हैं। अदरवाइज डिक्लेरेशंस और ये सब तो रिफंड एप्लीकेशन में होती है। एक स्टेटमेंट 1 है जो मैंडेटरी होता है, वो होता है हमारे इनपुट्स जिसका हम रिफंड ले रहे हैं, और जो आउटवर्ड से जिसके केस में हम रिफंड ले रहे हैं उसका एक स्टेटमेंट होता है, वो हमें सबमिट करना होता है। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। So what's new in online filing of refund? Bunching of refund claims. सर्कुलर 125 बोलता है कि मैं किसी 2 पीरियड को क्लब करके मेरा रिफंड फाइल कर सकता हूँ, किसी 2 फाइनेंशियल ईयर को क्लब करके मैं रिफंड फाइल नहीं कर सकता। उसके लिए एक केस लॉ आया पीताम्बरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। उसमें ये बोला है कि आप लॉ को ओवररूड नहीं कर सकते। तो उस केस लॉ के हिसाब से उस सर्कुलर जो है उसको मॉडिफाई किया है कि हम अब किसी भी 2 फाइनेंशियल ईयर को क्लब करके रिफंड फाइल कर सकते हैं। हाउएवर जो ये फैसिलिटी है वो पोर्टल अभी अलाउ नहीं करता है, बट रूल्स के हिसाब से अब हम रिफंड फाइल कर सकते हैं। जैसे ही वो फैसिलिटी अप्लाई होगी तो ये क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा होगा कि वो किसी 2 फाइनेंशियल ईयर को क्लब करके रिफंड फाइल करे, जिससे उसकी आईटीसी जो है वो लिक्विडेट हो जल्दी से। नेक्स्ट स्लाइड अंशुल भैया। एक्सटेंशन इन ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ रिफंड क्लेम्स। As per notification number 35/2020, Central Tax dated 3/4/2020, where the timeline for any compliance required as per subsection 1 of section 54 of the Central Goods and Services Tax Act 2017 falls during the period
March 2020 to 29th June 2020, the same has been extended. Due to the COVID situations, the government has गवर्नमेंट ने एक टाइमलाइन हमें सेट कर दिया है कि अगर आपका 30/3/2020 के बाद जो भी सर्विसेज है, 20/3/2020 के बाद जो भी सर्विसेज है, अगर वो किसी की टाइमलाइन आ रही है 29 जून तक, तो उसकी जो ड्यू डेट है वो बढ़ा के उन्होंने 30 जून कर दिया। अकॉर्डिंगली अगर कोई रिफंड जो था मेरा 20 मार्च को एक्सपायर होने वाला था, जिसके 2 साल होने वाले थे, उसका रिफंड मैं 30 जून 2020 तक ले सकता हूँ, वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, उसका रिफंड मुझे मिलेगा। क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू एवरीवन। So if you have question, you can ask in chat box. Before this, anything Yes sir and Mudit sir wants to add? Yes sir, Mudit sir. Yeah, hello. 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 Yes, you can say your answer. Hello. Question. I have one question that the Yes. whole chapter was very informative, and basically we are facing one problem. We have given GST to one of our supplier, but what happened? He has not Yes. updated that amount on the government portal. So because of that reason, Yes. we are not able to claim GST benefit. So, yes in sir, that you are case, not what able we to should take refund. Yes sir, you are not able to take refund of that invoice. Yes. If you file the refund online, but officer will Yeah. उसको So ऑफिसर उस रिफंड को नहीं देगा। अगर उसको पता लगता है कि वो 2A में नहीं आ रहा है, सामने वाले ने रिटर्न नहीं भरी है, तो वो इस इनवॉइस का रिफंड आपको कभी नहीं देगा। वो आपको बोलेगा कि आप विड्रॉ कर लो। So now, what we need to do, because supplier is already bankrupt and already 3 invoice GST he has not इनवॉइस updated कौन on से the पीरियड से portal. लेट करता है सर? So now, इनवॉइस कौन से पीरियड? what we should do and what is the next action we should take? नो सर, माय क्वेश्चन इज, आपका इनवॉइस जो है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है? It was last quarter invoice. ओके, सो हैव यू फाइल्ड रिफंड फॉर दैट पीरियड और नॉट? Last financial year, sir. 18-19. Rochak, actually, Swapnil ji. No, we didn't file because it is. Okay, I'll answer this question, Rochak. यस सर। हाँ, so स्वप्निल जी, आई एम श्योर आपने वो सप्लायर को तो पेमेंट कर ही दिया है। हाँ बिल्कुल। So अभी ये केस में सर आपको टेक्निकली क्रेडिट के लिए there are two ways which are available, sir. One is the traditional way which generally people do, that they take the credit and then they fight it out with the government by saying कि हमारी तो कोई गलती नहीं है इसके अंदर, because ultimately ये टैक्स का बर्डन हमने बेयर कर लिया है, जिससे रिकवरी करनी है आप जाके उससे रिकवरी करिए। दैट्स नंबर वन। बट इसके अंदर लिटिगेशन इज इन्वॉल्व प्लस सम कॉस्ट इज इन्वॉल्व। बट इसके केस में फेवरेबल जजमेंट है हाई कोर्ट के, जो ये बोलते हैं कि हम रिसीवर को अननेसेसरी परेशान नहीं कर सकते अगर वो ये प्रूव कर सकते हैं कि उन्होंने टैक्स का पेमेंट सप्लायर को कर दिया है। There is second alternate way available, sir. If you are saying that person is bankrupt, then you have to go into that insolvency proceedings, sir. And when you go in that insolvency proceedings, then whatever you recover, that's the additional amount, that recovery which you have, sir. So practically speaking, there is no direct answer to this. But अगर insolvency proceeding में नहीं जाना है, तो credit ले लेना चाहिए, साथ में डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिख देना चाहिए कि हमने टैक्स का पेमेंट कर दिया, सामने वाला रिटर्न नहीं फाइल करा रिमाइंडर के बावजूद, तो हम क्रेडिट ले रहे हैं। अगर आपको कोई इसमें क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क अस, अदरवाइज प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट द सप्लायर, सो दैट एटलीस्ट हमारा बोनाफाइड प्रूव हो जाएगा, हमारा कोई मालाफाइड इंटेंशन नहीं होगा कल को डिपार्टमेंट हमसे कुछ क्वेश्चन करता है। Great, great, great. Thank you so much. Thanks. I am satisfied with the answer. Thank you, sir.
Anybody has any other question? Okay. So I'll just add one or two things. I think Rochak has taken this beautifully, and he has almost deliberated on all the practical issues in respect of refund. एक दो चीजें जो मुझे लगता है काम की हैं, जो हमें ध्यान रखनी चाहिए. That is number one is in respect of record keeping. So practically what happens is जो लोग regularly refund लेते हैं उनको पता रहता है कि रिकॉर्ड किस तरीके से रखना है, and that is because it goes to the department every month and they tend to verify that. But apart from that, जो लोग refund नहीं लेते हैं but still they have to maintain the credit records, it is very important on their part also that वो रिकॉर्ड उसी तरीके से रखे जैसे वो लोग रखते हैं जिनको रिफंड फाइल करना होता है. फॉर द सिंपल रीजन, जो अभी रोचक भी बात कर रहे थे when Swapnil ji was asking a question, so he was under this impression that probably he is talking about a refund. बट अगर अदरवाइज देखें तो हमारे पास जो क्रेडिट है जो गवर्नमेंट से आती है, इट इज एज गुड एज अ वेस्टेड राइट. एक तरीके से हमारा अधिकार है ये. और ये अधिकार वाली बात बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि हम जो सप्लायर को टैक्स का पेमेंट करते हैं वो एक तरीके से हमारा अधिकार बन जाता है, हमारी प्रॉपर्टी बन जाती है. पर जैसे ही कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है तो जिसके पास कागज पूरे होते हैं वही उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को अपने फेवर में कोर्ट ऑफ लॉ में जाके एक्सप्लेन कर सकता है. तो सिमिलरली कल को जाके अगर विभाग हमारे से हमारी क्रेडिट के ऊपर डिस्प्यूट करता है कि एक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलनी चाहिए, तब उस केस में आपके जो रिकॉर्ड है वही रिकॉर्ड ये चीज को स्टैब्लिश कर पाएंगे कि आपका जो क्रेडिट जो आपका प्रॉपर्टी बना है वो प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जितनी भी चीजें होनी चाहिए वो आपने पूरी कर ली है. तो जैसा कि हम कभी लैंड की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सेल डीड प्रॉपर होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो बेचने वाला था उसके पास राइट होना चाहिए था बेचने का, अनऑथराइज नहीं होनी चाहिए. ये सब चीजें जरूरी है. सिमिलरली क्रेडिट के रिस्पेक्ट में हमारे पास इनवॉइस प्रॉपर होना चाहिए. तो ये पहले लेवल का चेक है जिसको हम हालांकि बार बार ही कहते हैं, बट नाउ इट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज डिपार्टमेंट इज नाउ डूइंग द ऑडिट ऑन रेगुलर बेसिस. दे आर डूइंग सर्वेज ऑन रेगुलर बेसिस. तो कल को मान लीजिए मैंने ही आपको कोई इनवॉइस दिया और मेरे इनवॉइस में टैक्स भी लिखा हुआ है, पर वो टैक्स का जो बाइफिकेशन होना चाहिए था वो गलत है, पर आपने मेरी गुड फेथ के ऊपर आपने यश को इसलिए पेमेंट कर दिया क्योंकि यश है तो उसका पेमेंट कर देते बिकॉज यू नो हिम क्वाइट वेल. आई डोंट थिंक दैट इज अ करेक्ट प्रैक्टिस. तो जो पांच छह पैरामीटर है इनवॉइस पे जो चीजें होनी चाहिए विच वी हैव कम्युनिकेटेड थ्रू मेल्स या अदरवाइज रेगुलरली, आई अगेन रिक्वेस्ट कि हमारी डाउन द लाइन जो टीम है जो पहली बार बुक्स में एंट्री करती है इनवॉइस की, वो ध्यान रखे कि वो पांच और चीजें इनवॉइस पे प्रॉपर है. सेकेंड, एटलीस्ट ये प्रैक्टिस जैसा हालांकि मोस्ट ऑफ यू फॉलो इट बट स्टिल कीप इट अ प्रैक्टिस एटलीस्ट कि सम अमाउंट ऑफ टैक्स इज हेल्ड बैक टिल द टाइम वी सी कि नेक्स्ट मंथ की रिटर्न का डिटेल हमको पोर्टल के ऊपर दिख रहा है. दो आई नो इट इज इजियर सेड देन डन बिकॉज ये हर केस में पॉसिबल नहीं है, पर एटलीस्ट ये चीज अंडरस्टैंडेबल मेजोरिटी केसेस में अप्लाई होनी चाहिए कि हम 5% 10% पैसा सिर्फ अगले महीने की 20 तारीख तक के लिए रोक के रखें जिससे हम श्योर हो जाए कि वो टैक्स का पेमेंट हो गया है. एंड तीसरी चीज, वी हैव टू इंश्योर कि हमारा रिटर्न जो हम फाइल कर रहे हैं थ्रू फॉर विच यू टेक आर असिस्टेंस या अदरवाइज यू योरसेल्फ फाइल इट, उसके पीछे की बैक वर्किंग हमारे पास स्ट्रांग हो. और ये बैक वर्किंग मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे क्लेम को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और डॉक्यूमेंट होगी बाकी सब चीजों के कंपैरिजन में. So though it is a very basic thing, but this has to be taken care of and it is very important. One more thing, I'm sure Rochak must have covered it, but now there is one more condition कि हमको फॉरेन जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको अगर रिफंड लेना है तो दे शुड रिसीव द फॉरेन करेंसी बैक. ओके, नाउ ये फॉरेन करेंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है रिसीव करने का वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा आ जाना चाहिए और हमारे अकाउंट में सेटल हो जाना चाहिए. More than receipt of amount, the next important thing is that जो हमारी BRCs या EBRCs या FIRCs whatever is applicable वो हम DGFT से क्लियर करा लें. So हम में से
कुछ लोग ऐसे हैं जो बैंक एडवाइस के बेस पे बुक्स में एंट्री तो कर लेते हैं, अकाउंट को सेटल करा लेते हैं, आपकी स्टार्ट ऑडिट भी पूरी हो रही होगी, बट हो सकता है जो डीजीएफटी पोर्टल से जो क्लियरेंस होना चाहिए ईबीआरसी एफआईआरसी का बैंक के थ्रू, वो क्लियरेंस पेंडिंग हो, एंड अनफॉर्चुनेटली दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर कहीं नॉन कंप्लायंस है तो जो डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस विंग है वो इस चीज को बड़े ध्यान से देखता है, और एंड दैट बेसिस दे इशू द नोटिसेस। अब चूंकि जीएसटी रिफंड को भी उससे लिंक कर दिया गया है, so it becomes an additional point. Okay. Next is in respect of GSTR 2A. GSTR 2 की मैचिंग कराना हमेशा से एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क रहा है, बिकॉज इसका मैकेनिज्म गवर्नमेंट पोर्टल पे आज की तारीख में भी प्रॉपर नहीं है, बट स्टिल ये एक्सपेक्टेड है कि चूंकि ये लॉ है जो सरकार अब बना चुकी है और जो चेंज होने की पॉसिबिलिटी में अभी काफी समय है, सो वी एक्सेप्ट दैट, और हम सप्लायर को एजुकेट करें। सो आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी एजुकेटेड, यू नो अबाउट दिस, बट जब तक आपका सप्लायर एजुकेटेड नहीं होगा, आप कितना ही डिसिप्लिन क्यों ना लेके आ जाए, यू विल ऑलवेज हैव दैट डिस्कम्फर्ट जहां पे सप्लायर नॉन कंप्लायंस कर रहा होगा। So that is why it is very important that we or somebody from our team communicate with the supplier. तो जब आप किसी के साथ रेट नेगोशिएट करते हैं, जब आप किसी सप्लायर को फाइनल कर रहे हैं, when you are listing your suppliers, when you are giving grading to them, this point should also be very important, that how are they complying with their GST, because 18% का कॉस्ट 18% का कॉस्ट कंपोनेंट इज नॉट अ स्मॉलर अमाउंट। तो वी कैन नॉट टेक दिस प्ली बाय सेइंग कि एक बार चलो प्रोडक्ट अच्छा है तो कर लेते हैं काम, टैक्सेशन तो हमारी अकाउंट्स टीम बाद में देख लेगी। सो इफ योर सप्लायर इज एजुकेटेड, प्रैक्टिकली आप एक जीएसटी नॉन कंप्लायंस की बहुत बड़ी कॉस्ट है जो आप अपने आप को उससे पहले से सेफगार्ड करके चल रहे हैं। सो दीज आर फ्यू जनरल पॉइंट्स, दो दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू रिफंड, बट ये रिफंड की पहले का एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसका हमको ध्यान रखने की जरूरत है। इफ वी टेक केयर ऑफ दिस, probably refund filing of refund becomes comparatively quite easier. Okay, anybody has any question or anything of that sort on this particular topic, you're most welcome to do so. Rochak, you have any additional point? No, sir. Okay. Previous videos, the link of those videos have already been shared with all of you. आप उसको एक तरीके से you can use them as a reference. You can save the link somewhere along with the topic, so at any point of time you realize that you want to refer on a particular topic, you may go there. And it is needless to say that wherever you need our advice, you need further clarity on some point, you may come back to us. You're always welcome to do so. So I think we are at the conclusion of the session. It is always a pleasure interacting with all of you, and with this I think we can close for today. So thank you so much, Rochak, and thank you so much all of you for your time. Thank you, sir. Yeah, just recording of the webinar, Pooja ji is asking, so we'll share it. We will share the link with you through email along with the presentation by today evening or by Monday morning. Thank you so much. Bye bye.